मैं राजा ना रानी, ना नई ना पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। और आज मेरे साथ है भारत की एक ऐसी बेटी जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी होने के साथ साथ इस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी। मेरी मुराद है मैडम अनीता सोम प्रकाश जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैम, जनता की रसोई, ये महान विचार आपके मन में ये कहाँ से चिनक लगी? देखो फगवाड़ा शहर ਚ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ 17 ਚ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ 17 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੀ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਖੋਲੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। ਜੀ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं है। ਇਹ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸੋਈ ਚਲਾਈ ਸੀ कि ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ एहसास ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ। मैम हम वही देख रहे हैं कि कोई चूना कली करने वाला है, कोई मजदूर मिस्त्री है, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है, 6 साल से लेके 60 साल तक के बुजुर्ग, मर्द, औरत, सब यहाँ पे सब यहाँ पे आए हैं, काम करके आए हैं, आधा दिन निकल गया, खाना खाने आए हैं। सो मैम किस तरह का महसूस करते हैं कि आपकी मेहनत जो पौधा लगाया था वो सही जा रहा है, ठीक है? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪਿਸਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ A+ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾਉਂਦੇ ਆ। मैम ये क्वालिटी जो है इसको आप कैसे इंश्योर करती हैं कि फूड की क्वालिटी इतनी अच्छी हो? अभी मैंने देखा जैसे आप टोकन वहाँ हो रहा था तो आप वहाँ देख रही थी, आप कहीं पतीले में झांक के देख रही थी, और आप क्या क्या करती हैं जिससे क्वालिटी इंश्योर्ड रहे? ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। मैम मतलब इतने बड़े लेवल पे किसी के दर्द को, किसी की ज़रूरत को समझना और उस हिसाब से इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग करना, आपके टीम के बारे में कुछ बताएंगे कि कौन कौन है आपके साथ? देखो साडी टीम ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। 12 12:30 रसोई शुरू, खाना शुरू होता है। कितने बजे तक चलता है मैम ये जब तक लोग आते हैं खाना होता है, जब खाना खत्म होगा तब बंद होगी। नहीं तो जितनी देर खाना है तो हम किसी को मना नहीं करते, खिलाते रहते हैं। मैम मेरा एक सवाल यहाँ पे आपसे कि आप 40+ है तो किस तरह का आपका बचपन रहा होगा कि ये वैल्यूज़ आप में इतनी भरी हुई हैं? कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में जिन्होंने आपको वैल्यूज़ दी, किसका ज़्यादा असर रहा? नहीं, अब तो मैं 60+ हूँ। 40+। गॉड ब्लेस यू मैम। 60+ हूँ पर शुरू से बचपन से यही सीखा है अपने फादर से, मदर से भी कि जो भी घर में आता है वो खाना खा के जाए। हमारे घर का जो रिवाज है जहाँ भी, और पेरेंट्स के घर में भी थी जब तब भी एक सेवा की भावना रहती है। मेरे फादर भी एक सोशल वर्कर के तौर पे ज़्यादा काम करते थे। अच्छा जी। उनकी लगन गुरुद्वारों में ज़्यादा थी। अच्छा तो गुरुद्वारा बनाने हैं, ये करना है, उनका ध्यान इसमें बहुत था। तो फिर जो लोग आते थे उनको खाना खिलाना है। कहीं भी गुरुद्वारा बन रहा है, बाग
जाकर सेवा करनी है और उसको पूरा करना है, ये उनकी इच्छा रहती थी जी। तो मुझे उनकी बहुत देख के मेरे दिमाग में यही रहता है कि नहीं, जो मेरे पास आया वो खाना खा के ही जाएगा। मतलब ये एक आपको इंस्पिरेशन अपने डैड, अपने फादर से मिली। जी नमस्कार मैम। अब ये लेगेसी आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपको लगता है कि वो भी आपके साथ इसी चीज़ में एक वैल्यूज़ को आगे लेके अपने जाएंगे? बच्चों में भी यही डाला हुआ है वंडरफुल। कि सेवा करनी है, ये नहीं देखना आपकी पॉकेट में क्या है। ओके। क्योंकि सोम प्रकाश ने हमेशा ईमानदारी से सर्विस की है और ईमानदारी से ही पॉलिटिक्स की है जी। हमारे घर में बेईमानी का पैसा कोई नहीं आता, अभी बरकत जो है उसी में करते हैं, उसी में बच्चों को करना सिखाया है जी। और वो भी मेरा उत्साह भी बढ़ाते हैं और मेरे साथ करते भी हैं, काम भी करते हैं। मैं जो उनको बोलती हूँ मेरा पूरा साथ देते हैं। और मेरी बेटियां जो बेटों के साथ लेके आई हूँ वो भी मेरा बहुत साथ देती है और परिवार का। और सबसे ज़्यादा साथ ये जिनकी प्रॉपर्टी है वो सामने रहते हैं, रोहित पाठक जी 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 जी। ये उनकी प्रॉपर्टी है जिसमें मुझे अब 17 से रसोई चल रही है और उन्होंने कभी मना नहीं किया कि हमें हमारी प्रॉपर्टी चाहिए वापस। जी। वो उनके मन में भी उतनी भावना है, सेवा भाव। जितनी हाँ सेवा। उनके मदर फादर के मन में बहुत भावना है, उसके फादर भी बहुत है, उनकी भी लगन बहुत है सेवा में जी। तो वो भी बोलते हैं कि आपने जब तक चलानी चलाओ रसोई, कोई बात नहीं है, जहाँ से कुछ नहीं ले जाना किसी ने भी, यहीं रह जाना है। बहुत गहरी, जो समाज के लिए कुछ कर ले वही है। बहुत गहरी बात। इलाके के लोग, एक पर्सन जो आ रहा था, आप टोकन दे रहे थे, महज 10 रुपए में वो भोजन ग्रहण कर रहा है, उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट, वो सेटिस्फेक्शन देखने बनती है। और हर कोई आपको पहचानता है, आप हर किसी को प्यार से बुला रहे हैं। सो इतना समय आप कैसे निकाल पाती हैं अपने गृहस्थ जीवन में से? बहुत है समा लोगों के लिए है। फगवाड़ा शहर है जो वो मेरा परिवार है जी। बहुत सालों से जहाँ रह रही हूँ, इसलिए एक एक लोग मुझे पहचानता है, मुझे जानता है जी। मेरे से बात करते हैं जी। और रसोई के साथ साथ में यही नहीं है कि रसोई चलती है हमारी जी। किसी को मेडिसिन की जरूरत है जो नहीं ले सकता है जी, वो मेडिसिन भी देती हूँ। वही मैं देख रही थी कि एक कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उसको कहा टोकन ले, खाना खा ले। हम टोकन देते हैं पर हम रसोई में 10 रुपए जरूर डालते हैं। अपनी तरफ से डाला आपने, अपने पर्स से निकाल के आपने वहाँ पैसे रखे। जरूरी है जी, हमने डालने ही होते हैं जो जितने लोग मर्जी आ जाए। जिनके पास नहीं है खाना खाने बगैर कोई नहीं जाएगा जी। वो पैसे हमारा कोई भी मेंबर बैठा होगा वो अपने पास से डालेगा जी। उसको सभी को ही है जी हदायत कि रसोई में वो 10 रुपए डालने ही डालने हैं और सब डालते हैं जी। और अगर लड़कियों की शादी है लोड़वंद, उनको किसी हेल्प की जरूरत है वो भी करती हूँ। बच्चों को स्टडी के लिए जरूरत है वो भी हेल्प करती हूँ। कई बच्चे हैं जिनकी फीस देती हूँ लगातार जी। और ऐसे चलता रहता है, भगवान की कृपा है, अच्छा लगता है। आप एक बात बताइए, फगवाड़े के जो लोग हैं, इस शहर के जो लोग हैं, वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, तो क्या धनराशि भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, आम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं? हमने कभी नहीं बोला किसी को। अच्छा, पर आ जाता है अपने आप कहीं ना कहीं नहीं, किसी का अपना मन हो दे जाए तो बहुत अच्छा है जी। जो अपने आप मन से दे के जाते हैं, पर्ची कटवा के लेके जाते हैं जी, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं जी। हाँ, अभी देखा आपने किसी ने आटे की बोरी भेजी है, उनका मुझे फोन आया था, बोलते हम आज हमारे फादर की बरसी है और हमने आटे की एक बोरी भेजनी है, क्योंकि खाना खिलाना होता है सभी को, तो फिर वो हमें भी खा लेते हैं अभी जी। तो वो रसोई में भी भेज देते हैं। अगर किसी का जन्मदिन है वो भी जहाँ आके मना लेते हैं, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है हमारे मेंबरों से, वो भी जहाँ आके कर लेते हैं खाना। शानदार, तो उससे सभी को अच्छा लगता है। ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि फगवाड़ा शहर के लोग, अगर किसी के माता पिता की बरसी है, जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, वो यहाँ आकर आटा या अनाज, गेहूँ, कुछ भी जो उनसे बन पड़ता है वो यहाँ दे के जाते हैं कि किसी के पेट में वो अनाज पड़े। मैम, आपने बहुत बड़ा उपराला किया। कहीं ना कहीं ऐसे कभी भी किसी से बोलते नहीं है कि हमें ये चाहिए जी। और जो राशन है हमारा हम बंद लेते हैं, कभी खुला राशन नहीं लेते, पैक्ड लेते हैं। और जितने ही हमारे एक दिन का खाना बनता है, जितनी दाल सब्जी लगती है पूरी लेते हैं। अगर किसी ने दे दी, जे को बोले कि हम 2 किलो देंगे, हम मुझे ऐसा हम नहीं लेते हैं। नहीं, ये हमारी रसोई का डिसिप्लिन है, क्योंकि हमारा राशन जो बहुत बड़ी फर्म से आता है प्लस का, उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
A+ फॉर्म है जहाँ से आप बहुत राशन बड़ी लाते फॉर्म हैं। है, प्लस है जी। पंजाब में। Right. और उसका पूरे इंडिया में राशन जाता है उनका। तो पर इसलिए हम किसी से लेते कम, उनको बोलते हैं कि अपना पैसे डाल दो, जी। कुछ डालो, राशन तो आ ही रहा है हमारा। जी जी जी। तो वो हम राशन जहाँ से ही लगा देते हैं ज्यादा। और मैम जो क्योंकि खुला राशन हम किसी से लेते किसी से नहीं नहीं है। हम लेते। मैं बहुत, मुझे लगता है कि नहीं, पता नहीं कैसा होगा या क्या है। क्वालिटी पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? कोई कॉम्प्रोमाइज जी। मैम जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो फिर वो भी किसी की डेली लगी है? डेली फ्रेश आती हैं हमारी। Okay. और डेली चेंज होती हैं। ओके। किसी से पूछो, डेली चेंज होती है हफ्ता पूरा। और जी। मंडे से फिर दोबारा स्टार्ट होगी। जी। और डेली रूटीन में वही सब्जी नहीं मिलेगी कि हम एक ही बनाते हैं। जी। और जो डिशेस, जो बर्तन है, पतीले हैं, प्लेट्स हैं, वो धोने के लिए, उसके लिए क्या प्रोसेस है? क्या जो साबुन वो भी वगैरह? हमारे वर्कर हैं। ओके, वो कर सारा रहे हैं। धोते हैं, उसके देखो, लिए भी जब कोई हमने compromise रसोई नहीं है। स्टार्ट की थी तब जी। हमें बहुत 6 महीने बहुत प्रॉब्लम आई थी। हमने जी। खुद भी किया, जी। खुद भी रोटियां बनाई हैं इसको चलाने के ओके, लिए। जी। और खुद बर्तन भी धोए हैं। कभी महसूस ही नहीं होता है, जैसे गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं वैसे जी, जी। जहाँ भी कर ये भी लेते सेवा ही हैं। है। कभी भी जरूरत पड़े आप भी कर लेते हैं। अगर जी। ज्यादा रश हो तो साथ में करते हैं। जी। हमारे मेंबर भी करते हैं आके। जी। तो कभी नहीं महसूस नहीं करते हैं। जी। मैम एक सवाल ये हमें और जल्दी से लेना चाहूँगी कि फगवाड़ा के लोग बाहर विलायत बहुत गए हैं, तो क्या NRIs जब ये आपके इतना काम देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी होता होगा कि हम भी कुछ करें मैम के लिए, कि मैम फगवाड़ा के लिए इतना करें, तो उनकी तरफ से कुछ सोसाइटी को वो कुछ गिव बैक करते हैं? है, बीच बीच में है जो करते हैं। जी। और हमारी बहुत है, खास है वो, मेरा बेटा ही है, वो बहुत हेल्प करता है हमारी। जी। और वो हद से ज़्यादा हमारी हेल्प करता है कि रसोई जो चलती है। ओके। हाँ, उसने बोला हुआ है कि जब बंद नहीं होनी चाहिए। वंडरफुल मैम। हाँ, मैम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका कितना साथ देती है इस सब में? हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कभी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत बड़ी बात। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉग्निशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉग्निशन? नहीं, हमने जे अपनी तरफ से चलाई है। जी। तो पंजाब सरकार ने आगे चलाई थी, पहले को चली जी। थी, सभी बंद हो गई। जी जी जी। यही एक रसोई थी जो चल रही है। जी। जो बीजेपी वालों की तरफ से, अगर हम बीजेपी पार्टी को ब्लॉक जी, जी, करते जी। हैं तो वो चल रही है। पर इसमें पार्टी कोई नहीं है। जी। और कोई भी कुछ नहीं है, सब एक है, एक होके इकट्ठे बैठ के खाना समाज खाते के हैं। लोग इकट्ठे ये होकर सभी आए। के लिए है। जी। और कई NRI के पेरेंट्स है जहाँ अकेले रहते हैं, जी, वो जी, भी आके जी। खाना खाते हैं। ओके। वो रात का ले भी जाते हैं पैक करके कि नहीं बनता, बुजुर्ग है। जी। ऐसा नहीं होता है कि बुक खाना हमारा हर कोई खा सकता है। बहुत बड़ी कोई बात भी है। यहाँ पे हाँ। कि इस शहर के जो NRI फैमिलीज हैं, उनके बुजुर्ग भी यहाँ पे आकर खाना खा के भी लेके जाते हैं, अपने घर के लिए भी ले जाते हैं। तो मैम जाते जाते ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जनता की रसोई की तरफ से? मैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹੀ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत बड़ी बात। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। खा नहीं रहे। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋ ਕਹੂਗਾ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ऐदा ही समाज की सेवा करते रहिए। बहुत यही आस के नाल चलती है। ब्यूटीफुल। हाँ, धन्यवाद। तो ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, हमारे साथ ही मैडम अनीता सोम प्रकाश जी फगवाड़ा शहर से, जो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की तरह मैं इनको खाना खिलाना चाहती हूँ। सो एक तरह से अगर हम कहें कि मैडम सोम प्रकाश जी, अनीता सोम प्रकाश जी फगवाड़ा की मदर टेरेसा की तरह है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पंखे लगे हैं, प्रॉपर छत है, टेबल्स हैं, डाइनिंग टेबल बने हैं, लोग खाना खा रहे हैं, बड़ी सफाई से खाना बनाया भी जा रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और एक ब्रांडेड जगह से पैक्ड जो है वो राशन आता है।
सो जनता की रसोई यूं ही चलती रहे, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप अपने कमेंट्स देके ज़रूर मैडम अनीता को इनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।